I am Rachna Daryani. I'm based in Jakarta. I'm a counselor, a master life coach, a clinical hypnotherapist, and a psychotherapist. I want to help people develop a healthy mindset. Counselors आपको advice नहीं देते कि आपने यही करना है या वही करना है. We help you to think better. I don't look at like मेरे कितने followers हैं, क्या है. बस if I can touch one life, help one person. I know it sounds like a bloody speech, but it's not. I actually think like that. मेरे इतनी बड़े dreams नहीं है. छोटे-छोटे प्लान करती हूँ और वो अच्छा हो जाता है. पर हम कभी ये नहीं कहते कि ये करो. अरे मेरा क्या जाता है, मैं बोल दूंगी आप लोग प्लीज भाग के शादी कीजिए, बट बाद में तो आपको भुगतना है ना. सब लोग को लगता है मैं चुपचाप बैठती हूँ, मैं कितनी स्वीट. मैं स्वीट भी बहुत हूँ, बट मेरे से पंगा नहीं लेना. Actually, you were just talking about casual relationships. We have another question. Please talk about pros and cons of casual relationships, friends with benefits, hookups, etc. Please give advice to those who find it difficult to commit to one person. So this is what you were saying earlier, right? The social consequence of. Yeah. इसने दो क्वेश्चन पूछे हैं एक क्वेश्चन के अंदर, राइट? फर्स्ट है कि हुकअप कल्चर और इस पे, और दूसरा क्वेश्चन क्या है? Give advice on people who find it difficult, basically who's not monogamous, right? Basically, maybe polyamorous people could be that. Difficult to commit to one person. Yeah. So what आप अपना पहले एडवाइस दे दो. See, casual relationships, like you just said, we can't be moral policing. Yes, but then it has its own. If you're honest, suppose one person is into casual relationships, the other is not. Then you have to make sure that you tell the other person that, hey, this is going to be a casual hookup. Okay. If you hide, that means you're lying. And that person is assuming that you're going to be, with them and you'll be committed. So make sure that utna clarity hona chahiye. Dusra, I think casual relationships की problem ये है कि तुमको STD, HIV, कुछ हो सकता है. You'll be sleeping around with, and you are sleeping with somebody who's having a casual relationship. That person is sleeping with somebody else and somebody else. So the chances of you getting HIV is higher. So I think that is one thing is very dangerous, that besides तुम्हारा दिल भी रिस्क पे है, तुम्हारी बॉडी भी रिस्क में दोगे तुम. जी. और दूसरा क्वेश्चन क्या था? आप उसका भी अगर आपको आंसर देना. Give advice to who find commit. See, if they are polyamorous and they tell you like this, if you're upfront and honest, yeah, fine. And if you're comfortable with it, and then otherwise, you can have an open relationship. A lot of people do these open relationships, right? They date whoever, but they're as a couple. आजकल वो भी हो रहा है. अब who am I to tell them कि करो या नहीं करो? Live and let live. तुमको जो अच्छा लगता है, तुम्हें सूट करता है, तो as long as मेरे हिसाब से तुम किसी का खून नहीं कर रहे हो, रेप नहीं कर रहे हो, all those so-called black and white वाला जो वर्ल्ड होता है, ये I think black and white में fall ही नहीं करता, because ये तुम्हारी individual decision होगी, तुम्हारी life है. As long as you don't fuck up, sorry, as long as you fuck up बोलो आप, ठीक है. As long as you don't fuck up someone else's life and you don't hurt them, it should not be intentional hurt. Then if two people they're consenting adults, who are we to say anything? Exactly. बिल्कुल सही बात. आई थिंक यहाँ पे पहली चीज में वापस आता, तुम्हारा हुकअप और कैजुअल, ठीक है, एक ये हो गया, और दूसरा पॉलीएमरस हो गया, ठीक है. तो हुकअप वाली जहां तक बात आ गई, एक हो गया ऑब्जेक्टिव ओपिनियन क्या होगा, और दूसरा हो गया आपको पर्सनल एडवाइस क्या होगी, राइट? ऑब्जेक्टिव ओपिनियन, मैंने जहां तक मैं अपनी लाइफ में देखा है, आई एम येट टू फाइंड वन पर्सन जो कि इन देयर 30s हैं, जो कि हुकअप और कैजुअल लाइफ जी रहे हैं, मेन और वुमेन, एंड दे आर हैप्पी विद इट. नॉट, आई थिंक कभी कभी कहते हैं ना, कुछ चीजें ऐड और मार्केटिंग के लिए बनाई गई होती हैं. हुकअप और तुम्हारे ये है ना, ये टीवी पे देखने के लिए बहुत मस्त चीज है. जब आप देखते हो कैरेक्टर, जैसे अब तो वो भी दिखाना बंद हो गया, क्योंकि लाइफ इतने सब कुछ इतना वर्क हो गया कि आप वो भी नहीं दिखा सकते. गाय और गर्ल, जो कि गर्ल में दिखाते हैं, क्योंकि गर्ल में थोड़ा कूल हो जाता है ये, बट गाइज लाइक हुकिंग अप और समथिंग. बट मैं आप एक बार बता दे रहा हूँ, मैं आई अगेन हमेशा फ्रेटरनाइज विद गाइज ऑफ ऑल काइंड्स एंड शेप्स एंड फॉर्म्स एंड एवरीथिंग. तुम्हारे जितने यो लौंडे हुआ करते थे, दे सफर्ड वेरी ब्रूटली एंड दे टर्न आउट टू बी वेरी डैमेज्ड बाय 27, 26, जो हुकअप लाइफस्टाइल कर रहे थे, बट दे वर लाइक क्लोज टू, मैं कहूंगा कि मेंटल प्रॉब्लम्स इन देयर लाइव्स. व्हाई इज दैट, यू थिंक? क्योंकि वो स्टेबिलिटी से भाग रहे थे. दैट्स व्हाट आई रियलाइज. जब उनके अराउंड चीजें फिर स्टेबल होने लग गई हैं, वो ऑप्शन उनकी लाइफ से धीरे धीरे जाने लग गया कि आप अभी भी लॉन्डे की तरह लाइफ जी सकते हो,
they found it very troubling to settle in the other phase of life called adulthood. So basically, they're so used to doing this for so long that I they don't know what it means to be in a committed relationship. Not only that, I think so. जहां तक मैंने देखा अपनी लाइफ में कैजुअल, ओके, देयर आर प्लेंटी ऑफ रिसर्चेस बाय द वे कैजुअल और उस पे, ठीक है, जो कि इंसान अगर चाहे तो अपना पढ़ सकता है. रिसर्चेस में आपको ये पता चलता है कि बहुत ही रेयरली होता है, औरतों से भी बात करी और मर्दों से बात करें, औरतों से जब से भी उनसे जब एक बहुत ही कलेक्टिव ग्रुप में आप पूछा गया कि जो भी उनके कैजुअल एक्सपीरियंसेस थे, उसके बाद नेक्स्ट डे या यू नो वर यू हैप्पी विद इट, लार्जली हमेशा वो रिग्रेट होता है. women actually regret casual relationships या hookups जो भी होते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वैल्यू नहीं है ना उसमें. लड़का भी आपको वो वैल्यू नहीं देगा क्योंकि वो आपके लिए सिर्फ उसके लिए हुकअप कर रहा है. तो कोई भी इंसान ये नहीं चाहता आइडेंटिफाई होना किसी भी सामने वाले के कि वो सिर्फ एक टूल है फॉर सेक्सुअल पर्पसेस, राइट. पहली चीज तो ये हो गई. तो उसके अंदर तो ये हो गया कि दूसरी चीज आ गई कि तुम्हारे, उन्होंने पूछा है तुम्हारा फुलफिलिंग इमोशनली या फिर ये जितनी भी चीज हो गई. कोई भी इंसान है अगर लाइक हुकअप और उसमें, तो कुल मिला के ये आता है कि इंसान जो ढूंढ भी रहे हैं, लार्जली इंसान चाहता है कि कोई इंसान हो जो केयर करे उसके बारे में. कुल मिला के मैं इतना लंबा क्यों जाऊं, सिंपल सी बात है. सारी रिसर्चेस, सारी हैप्पीनेस के बारे में रिसर्चेस. अभी मैं कोहेबिटेड, ओके, अभी मैं आपको शायद मैं शेयर भी कर सकता हूँ. कोहेबिटेंस और कोहैबिटेशन और मैरिज पे प्यूर रिसर्च है, बहुत बड़ी. उन्होंने सिंपल सी चीज देखा, जो दो पार्टनर रह रहे हैं, इवन 10 साल के लिए रह रहे हैं बट शादी नहीं कर रहे, और जो पार्टनर शादी करके बैठे हुए हैं, इन दोनों के बीच में हैप्पीनेस में बहुत बड़ा डिफरेंस है. पार्टनर जो सिर्फ कोहैबिट करके बैठे हुए हैं एक दूसरे के साथ, यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में है, उनमें बहुत लेवल का कम ट्रस्ट है जितना मैरिड पार्टनर्स में होता है. ट्रस्ट, लव, तुम्हारी केयर, सारी चीजों की तुम्हारे उस रिसर्च में पाया गया ज्यादा है. अब ये तो चलो हो गई लिव इन, यानी इवन दो इसमें भी कमिट करके बैठे हुए हैं लोग. तो आप अब और पीछे आ जाओ, जहां पे आप शेर की तरह सोच रहे हो कि मैं शेर हूं. अब हो बच्चे ही दिमाग से, और उसमें अगर आप जानने लग जाओगे, आप साइकोलॉजी में ऑब्वियसली घुसो, तो आपको पता चलता है कि भाई इनके चाइल्डहुड में बचपन में जो रिलेशनशिप्स देखी, आपको पता चलेगा कि लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ शिट दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम और कॉजिंग देम टू डू दिस. इट्स नॉट नेसेसरली अ कॉन्शियस डिसीजन, क्योंकि जिनके घरों में चीजें बहुत बढ़िया थी, जिन्होंने अपनी छोटे में बढ़िया अच्छी हेल्थी रिलेशनशिप देख के पैदा हुए हैं, दे ग्रेविटेट टुवर्ड्स हेल्थी रिलेशनशिप्स. They don't want to hook up, और एक इंसान, एक बढ़िया इंसान से जैसे आप मिले, आपको बढ़िया बात हुई, then you have to abandon them ना to hook up. That's such a cruel choice. कि I just enjoyed having this conversation with you. आप जो जैसे आप केमिस्ट्री में मास्टर्स कर रहे हो, मैं इस धर फील्ड में मास्टर्स कर रहा हूँ और या पीएचडी कर रहा हूँ अपनी फिजिक्स में जैसे, और हम लोग जब बैठते हैं हमारे इंटरेस्ट सेम है, लाइफ के बारे में स्टडी पैटर्न सेम है. आप जिस यूनिवर्सिटी में कर रहे हो उधर से मेरा इधर का है, तो आपकी लाइफ में आप चीज देखते हो, बहुत सारी चीजें वो जा रही हैं. लेकिन जैसे आप इंसान वो हो जो सिर्फ हुकअप करता है, अब उस इंसान से आपको दूर होना है, क्योंकि नेक्स्ट इंसान हो सकता है अब आप जा रहे हो कोई 21 साल की कॉलेज की लड़की से, जो एक कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनैलिटी है, हुकअप करना है. सो दैट्स द थिंग, लाइक इमेजिन व्हाट इट्स डूइंग टू यू अगेन इमोशनली ओवर एंड ओवर अगेन, क्योंकि आपने डिसाइड करा मैं कमिट नहीं कर सकता किसी को. सो आई वुड से कि इंडिविजुअली डिपेंड करता है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जिसको करना है वो करे. हम कोई किसी के बाप नहीं है, अगेन ना हम किसी के भाई हैं. तुम्हें करना है, तुम्हारी जिंदगी भाई. तुम क्वेश्चन पूछोगे तो हम आंसर दे देंगे.